ऐसी कुछ भावनाओं को लेता हुआ बहुत ही सुंदर गीत है। या बदल के अब हमें जग बदलना है, व्यर्थ के झमेलों से अब उभरना है। एक पल स्वयं को झांक तू जरा, समय भी हमसे है क्या कह रहा। खुद को बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खुद को बदल तू, व्यर्थ ना से गवा तू। हर एक पल अनमोल है यहाँ, जी भर जी ले तू। मुस्कुरा दे अब तू, खिलता हो गुलाब जो। खुद को बदल तू, एक पल थम जा जरा, किस दिशा में है तू बह रहा। आसमां की ऊंचाइयों को छोड़ क्यों ज़मीं पे है भटक रहा। ऐ खुदा के फरिश्ते, किस बात का है डर तुझे। देख सामने स्वयं खुदा है खड़ा, सुन ध्यान से क्या कह रहा। सद्गुणों को भर ले तू, मेरे जैसा बन हूबहू। विश्व को बदलेगा तू, यही मेरी आरज़ू। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या आप बदलने के लिए तैयार है? कौन कौन तैयार है? और कौन चाहता है ये दौर बदलना चाहिए अभी? कौन चाहता है? सो यू रेडी टू चेंज द एरा? कलयुग को सतयुग बनाने के लिए रेडी है? हाँ जी, ओके। द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर ये दौर बदलना चाहिए के ऊपर मैं चाहती हूँ आप सब मेरा साथ देंगे गाने में। ये दौर बदलना चाहिए। यही है दिल की दुआ हो सबका भला, ये दौर बदलना चाहिए। दुख दर्द का है जो सिलसिला, अब और न चलना चाहिए।
सब बदलने के लिए खुद को बदलना चाहिए। Everybody, ये दौर बदलना चाहिए, ये दौर बदलना चाहिए। उम्मीदों का दिया जलाए जिंदगी की राह में, उन्हें आंसुओं से ना बुझाए सलामती की चाह में। उम्मीदों का दिया जलाए जिंदगी की राह में, उन्हें आंसुओं से ना बुझाए सलामती की चाह में। देने खुदा का वास्ता कुछ कर गुजरना चाहिए। ये दौर बदलना चाहिए, ये दौर बदलना चाहिए। दिल को यकीन है एक दिन ये समा बदलेगा जरूर, ये रात गुजरेगी जरूर, सूरज भी निकलेगा जरूर। सब वक्त से ही होना है, धीरज तो धरना चाहिए। Sing with me. ये दौर बदलना चाहिए, ये दौर बदलना चाहिए, ये दौर बदलना चाहिए, ये दौर बदलना चाहिए, चाहिए। ये दौर बदलना चाहिए। thank you. Om Shanti. Good morning, Om Shanti, and a very warm welcome. Om Shanti. अब हॉल में इतने सारे लोग हैं, ऐसा लगता है नाश्ता अच्छे से नहीं हुआ। Om Shanti. Very good morning. Thank you so much. So, it is a very pleasant Sunday morning, and yesterday I was told that there is no better time to be in Mumbai than in January. The weather is so pleasant, and where I come from, it is very chilling cold at the moment. Just a few days ago, we were experiencing -6, which was a record for us. But to come here in this pleasant weather and to be amongst such admirable human beings who have gathered here today to discuss great ideas, to exchange beautiful thoughts, and this day that we are looking forward to have more informal conversations as well amongst fellow doctors and healthcare workers as well. So we would like to formally begin the program with the inaugural ceremony, and before I do that, I would like to set a few things in motion for us to have a good day, so that we all have pleasant times sitting next to each other.
So one of the few requests that I would have is, since we're going to spend the whole day here, if we could all put our cell phones on silent mode. I know that we all have set in very nice ringtones to our phones, nice songs, nice pieces of music, but we would not want any of our speakers or our fellow colleagues who are sitting with us in the audience to be entertained by different variety of music in between. So it is a humble request that we all put our cell phones to silent mode. Can we all do that? And even if you have put your cell phones on silent mode, I would ask you to cross-check it again once. Sometimes artificial intelligence takes over and we know that our cell phones start ringing. So to formally begin with, I would like to invite upon the stage the guests for the inaugural ceremony. May I first invite the host of the program, Dr. Ashok Mehta. Sir, may I please request you to please come up on the dais. Please give sir a big round of applause. May I also request our very beloved and respected Brahma Kumari Santosh Didiji, the Joint Administrative Head of the Brahma Kumaris, to please come upon the dais and may we be graced by her presence. आदरणीय संतोष दीदी जी से अनुरोध है कि दीदी जी मंच पर पधारें और मंच को अलंकृत करें. आदरणीय दीदी जी पधारें, तब तक हम सभी करतल ध्वनि से दीदी का अभिवादन करेंगे. ब्रह्मा कुमारी इसकी संयुक्त मुख्य प्रशासिका आदरणीय संतोष दीदी जी. May I also invite upon stage Dr. Satish Khadlikar ji to please come upon the dais. May I also invite Dr. Shingari to please come upon the dais. Thank you so much. May I also invite Shri Madhusudan Agarwal ji to please come upon the dais. मैं साथ में आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर नीलिमा जी से कि वो भी मंच पर पधारें. डॉक्टर नीलिमा जी. मैं साथ में अनुरोध करता हूँ डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी से कि वो भी मंच पर पधारें और मंच की शोभा को बढ़ाएं. मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी को कि वो भी मंच पर पधारें. मैं डॉक्टर योगेश से अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच को अलंकृत करें. मैं साथ में आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर सचिन परब जी से कि वो भी मंच को शोभायमान करें. मैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी मंच पर पधारें. हमारे कुछ अतिथियों को आमदार कैप्टन साल्विन जी भी हमारे बीच हैं. उनसे भी अनुरोध है कि वो मंच पर पधारें. बहुत बहुत धन्यवाद. ये सजा हुआ मंच इस बात की स्मृति को दिलाता है कि हम जब भी किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम अपने घर के बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं. और भारतीय संस्कृति में ये बहुत ही अनूठी बात हमें सिखाई गई है कि हम किसी अच्छी शुरुआत के लिए संगीत और कला को आधार के रूप में लेते हैं. और भारत छोड़कर कहीं विश्व में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जहाँ पर स्वागत की परंपरा इतने दिल से, इतने सहृदयता से, इतनी आत्मीयता से की जाए. आज जिस हॉल में हम बैठे हैं, षण्मुखानंद चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ऑडिटोरियम, ये कला का और संस्कृति का एक
अद्भुत महाकुंभ भी है। तो आइए उसी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का एक सुंदर गीत से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर दामिनी जी को कि मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का और साथ में सभा में उपस्थित आप सभी सज्जनों का और देवियों का स्वागत करें। डॉक्टर दामिनी जी, उनके लिए करतल ध्वनियाँ एक बार। समझदारी क्या
Om Shanti. गीत के बोल ये बताते भी हैं, एहसास भी दिलाते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। और मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए लोग अक्सर भी ये कहा ही करते हैं कि डॉक्टर्स नेक्स्ट टू गॉड हैं, उन्हें फरिश्तों से कम नहीं गिना जाता। और वैसे भी डॉक्टर्स के जो वाइट एप्रन्स हैं, उसमें वो वैसे भी फरिश्ते ही नज़र आते हैं। तो उन सभी फरिश्तों का आज की इस महफिल में स्वागत है। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर अशोक मेहता जी से कि वो फॉर्मली वेलकम स्पीच के द्वारा आए हुए हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर अशोक मेहता एक जाने माने कैंसर सर्जन हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के फाउंडिंग ट्रस्टी हैं और बहुत सारे मुंबई के हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए सर का परिचय देना अनिवार्य नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट सर टू प्लीज फॉर्मली वेलकम आवर गेस्ट। Om Shanti. It is a greetings from medical wing and Raj Yoga Education and Research Foundation of Brahma Kumaris, and Dadi Ratan Mohini, Chief of Brahma Kumaris. I bring greetings to you. Respected dignitaries on the dais, academicians, leaders of medicine in Mumbai, and young medical and nursing students. I welcome you to this unique conference of rejuvenating medical minds. We live in a city stressful, with long distances to travel on overflowing roads and crowded public transport system, besides our stressful profession of medicine. 40 to 60% burnout rate in recent studies of healthcare professionals has been reported in number of studies in our country. I am involved with the medical wing of Raj Yoga Education and Research Foundation of Brahma Kumaris for over 30 years and learned a lot about functioning of the mind and how to control the thoughts. The primary function of the is to create mind, is to create thoughts. We create over 60,000 thoughts in a day. Most of them are either waste thoughts, negative thoughts, or thoughts pertaining to our general activities. Raj Yoga teaches us to create positive, powerful, peaceful, and purposeful thoughts. It also teaches us to live in the present, since most of our thoughts are either of the past or the future. Today, in the next 8 hours, you will hear outstanding exponents of Raj Yoga sharing with you what they have learned in their personal lives as healthcare professionals. They are all highly qualified specialists, individuals with long meditation experience, and have also been great teachers of Raj Yoga meditation. You have a cardiologist, pathologist, surgical oncologist, clinical researcher, psychological counselors, gynecologist, pediatric nephrologist, and research scientists in consciousness who have a strong clinical and academic background. The entire conference is being recorded and streamed live, watched by large audiences across the world. Most of us practice highly technical modern medicine, but miss out on the holistic approach. The theme of this conference is passion and compassion. When we enter the medical or nursing or physiotherapy or dental schools,
We are all passionate about helping the sick people who need to restore their health. The conference will address the problem of burnout in our stressful careers. We can continue to enjoy our professional work with a renewed passion that we had at the beginning of our professional life, and continue to provide compassionate care to justify dictum, doctors are next to God. The challenge of the current scenario will be addressed with a positive approach to make a difference. You will be double doctors at the end of the day, both of the body and the spirit. Om Shanti, and thank you very much. Thank you so much, Dr. Ashok Mehta ji. This is the second national conference on rejuvenating medical minds. Often people think, is it something that is necessary at this time? Is it something that we would need rejuvenation? And I believe most of us sitting in the audience would agree that it's not just the medical profession. Each one of us today are in need of some or other kind of rejuvenation. Maybe we would like to take a small break, and if we cannot afford that small break, we look for weekend getaways. And if we cannot do that, then we would want to do something to do over the weekend at our own homes, trying to break away the routine, trying to do something new. This search for wanting something new, to move towards something new, has also been the theme of this conference. Why do we want that newness? Is it that it gives us a new spirit? Does it really empower us to do something different? These are the deliberations that will happen during the day. And I believe with these exchange of ideas, we all will leave better people with at least a bit of rejuvenation in our minds today. Today we have a very special guest in our presence. We are indeed thankful that Didi Santosh, the Joint Administrative Head of the Brahma Kumaris, has graced this occasion. May I request our beloved Didi to please bless us with her graceful words and also guide us for the conference. आदरणीय संतोष दीदी जी से अनुरोध है कि दीदी जी अपने आशीर्वचन हम सब के लिए प्रस्तुत करें और इस कॉन्फ्रेंस के प्रति उनका आशीर्वाद और हम सब के प्रति अपनी शुभ भावनाएं। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। आज की कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे आदरणीय मेहमान, आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित प्यारे भाई और बहन, वैसे भी अभी अभी हम लोगों ने सुना कि जो भी डॉक्टर्स हैं उनको उनके लिए हमेशा सभी के अंदर से बहुत बहुत दुआएं निकलती हैं। और अभी अभी जो कोरोना का काल गया, इस समय डॉक्टर्स ने कितनी मेहनत किया और कितना पेशेंट को राहत दिलाया, जिसके कारण बहुत सारी दुआएं आप सभी को प्राप्त हुई। क्योंकि दुआ ही बहुत बड़ा कार्य करती है। हमेशा कहा जाता है कि सिर्फ
दवा से बीमारी ठीक नहीं होती है, पर दवा के साथ दुआओं की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो इसीलिए साथ साथ में अगर दुआएं देने, दवा देने वाले साथ साथ में अगर दुआ भी देना चालू कर दे औरों को, तो मैं समझती हूँ उनकी और कई गुना दुआएं डॉक्टरों की भी बढ़ जाएगी और पेशेंट को भी उससे बहुत बहुत लाभ मिलेगा। आज विशेष हम यहाँ डॉक्टर अशोक मेहता, जिनको बहुत ही ये लगन थी कि हमारे जो हमजिन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको इसका लाभ मिले। जिस प्रकार हम डबल डॉक्टर बनकर के कार्य कर रहे हैं, वैसे दूसरे डॉक्टर भी डबल डॉक्टर बने। शरीर के डॉक्टर तो सब हैं, परंतु साथ साथ में आत्मा के भी डॉक्टर बने, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को जल्दी शफा मिले। तो हमने देखा कि जब से हमारे अशोक डॉक्टर को ये विचार आया और उन्होंने खास बहुत मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके और ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया आप सभी के लिए, तो उनके लिए भी बहुत बहुत हम थैंक्स कहते हैं। और ये ऐसी लगन, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है जिस चीज़ का हमें फ़ायदा होता है, हम समझते हैं हमारे जो प्रियजन हैं उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। और जो हमारे हमजिन्स होते हैं, हमारे जैसा कार्य करने वाले होते हैं, तो उनसे तो हमेशा ज़्यादा प्यार रहता ही है। इसीलिए समझते हैं कि इनको भी फ़ायदा होवे और जनता को भी उससे फ़ायदा होवे, जिससे हमारा ये जो समाज है ये निरोगी बने और निरोगी बन के सदा खुशी में रहे। क्योंकि निरोगी बनने का एक ही सरल उपाय है, वो है सदा खुशी। तो खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों को खुशी देते हैं। तो औरों को खुशी देना, इसमें ही बहुत, उसके रिटर्न में हमें कई गुना खुशी मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप ये खुशी का खजाना ऐसा है, औरों को देते जाओ तो बढ़ने वाला है, कभी भी कमती नहीं होने वाला है। तो औरों को खुशी देना, औरों को आनंद देना, इसी से ही क्या है, रोग दूर भागते हैं और आत्मा जो है वो सुदृढ़ होती है, तो शरीर भी निरोगी बनता है। तो आज विशेष हम सभी के बीच में हमारी शिवानी बहन, जो शिव की वाणी है, वो वाणी सुनाने के लिए आप सभी के लिए इतने दूर से आई हैं और सब बहुत उत्कंठा से उनकी वाणी सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि शिव परमात्मा जो है, उसकी वाणी में तो यही है, वो सुखदाता है। तो वो यही कहता है कि आप सभी को सुख दो और सभी से सुख लो। तो मैं समझती हूँ इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ ऐसा नहीं समझे कि हम सुन कर के इन बातों को यहाँ ही छोड़ कर के जावे। उसमें से कोई ना कोई ऐसी बात अगर जीवन में धारण कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, यहाँ पर आए हैं, सबका बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष दीदी जी का। दीदी जी, आपके आशीर्वचनों और मार्गदर्शन के लिए हम आपके आभारी हैं। मैं दीदी जी से और मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वो मंच के समक्ष आए कैंडल लाइटिंग के लिए, और हम इलेक्ट्रिक दीप प्रज्वलन करेंगे। इस हॉल के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस हॉल पर एक्चुअल कैंडल लाइटिंग्स नहीं करेंगे, मगर उस प्रकाश को हमारे बीच आमंत्रित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस कैंडल लाइटिंग में अपने सेल फोन के टॉर्चेस को ऑन करके भी आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये यादगार है कि हम उस परम प्रकाश को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसकी स्मृति को आमंत्रित करें। भारत के सांस्कृतिक विरासत में
हम प्रकाश की ओर अग्रसर होने के हमेशा से आदि रहे हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, इसी बात का द्योतक है। मैं मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया सामने की ओर पधारें। वहाँ इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं, तो उन स्विचेस को ऑन करने से एक एक ज्योति जलेगी और उसको ऑन करके हम एक फॉर्मल इनॉग्रेशन इस कॉन्फ्रेंस का करते हैं। म्यूजिक प्लीज। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ एक ग्रुप फोटो के लिए सामने की तरफ आ जाएं, जो स्टेज पर हमारे गेस्ट हैं। मैं रिक्वेस्ट ऑल आवर गेस्ट टू प्लीज कम नियर द कैंडल लाइटिंग स्टैंड फॉर अ ग्रुप पिक्चर। कुछ घड़ियां हम उस परम ज्योति, उस परम शक्ति को भी याद करते हुए कि हमारे जीवन में और हर किसी के जीवन में प्रकाश दैदीप्यमान रहे, अज्ञान के अंधकार से हम दूर रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से हम इस कैंडल लाइटिंग सेरेमनी में अपना भी योगदान दर्ज करवाते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जो मंच पर उपस्थित हैं। उनमें से सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर सतीश खादलीकर जी से कि आप आएं और उपस्थित सभी महानुभावों को अपनी शुभकामनाएं और इस कॉन्फ्रेंस के प्रति दें। डॉक्टर सतीश खादलीकर जी। Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, I'll take you back to when I was a medical student. There was a very ill patient whom I saw in the intensive care unit as a student, and all my focus was on trying to understand why his pulse is like this and why his blood pressure is like this and what's happening to his heart and so on and so forth. After all that I had done, the old man asked me a question. My son has come to meet me. Can you please bring him inside the ICU? I was a very young doctor. I said, no, it's against the rules. Then the boss's round started. The old man asked the same question to the boss. My son has come to see me. Can you please allow him? And the boss allowed him. Every day the son would sit next to him, and the old man got better. I actually was very upset at my boss. Look, you set the rule, and then you are breaking the rule. But today, after whatever 35, 40 years have gone by, I understand that fact. I think we as doctors basically believe that we are scientists, and we want to practice our science in the best possible manner we can, and then believe that will make everything all right. But as you go on, you realize that that's not the fact. The science is incomplete. You cannot cure everyone. You cannot cure everyone. Then you ask your senior, sir, I've done everything that's in my book.
but the fellow is not getting better. Then he can't do anything. Then you keep on asking and you realize finally, look, there is a finite limit to what you can do as a scientist. And that's where I think you start thinking, what more is there? Why are these people not getting that much better as I thought they should be? And then you realize that you're scientists of the body. You're only analyzing the anthropometry and the size of the heart and the beating of the heart and blah, blah, blah. And you're only looking at the body. Some of us, as we evolve is the right word, we also start looking at the mind, and the mind-body medicine is becoming quite prevalent. But the mind-body medicine also is not the ultimate, because as you realize, the soul is the main driver, and that drives the mind and the body. So as all of us doctors evolve, we move from body medicine to body-mind medicine, and some of us reach a point of the soul medicine. If I was to go back to my own example, I think it takes a very, very long time in standard teaching to move to this point. And I think that is where this conference like this today is so important. Because if you can bring young medical graduates to understand this, I think they will move quicker further and they will become much more effective than sort of we were, because we learned to swim ourselves. So I must congratulate Dr. Ashok Mehta for organizing this sort of a seminar, which I think is absolutely marvelous. And I think the younger people we get, the quicker we will move on. Just 1 minute, 1 minute more. I think body medicine is like Newtonian medicine, all governed by the laws of what you see. But soul medicine is like the Einstein medicine, where there is a conversion of energy and matter. So I think let's move on from Newtonian medicine to Einsteinian medicine. Lastly, I think we are very privileged that we are Indians. We have all this with us, it's just that we have buried it. We only have to unearth it. Where the world has to learn it newly, we have to only unearth it. So I think conferences like these will serve that purpose. So let me thank Dr. Ashok Mehta for asking me to be here, because I am a novice and I hope to learn through the day. Thank you very much. Thank you, Dr. Satish Kharlikar. सर, आपने अपने संक्षेप शब्दों में बहुत ही विस्तृत रूप से इस कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य पर और इस पूरे दिन के सम्मेलन में हम क्या करना चाहते हैं और क्या हमारी विचारधाराएं जो पूरे दिन में मिलने वाली हैं, उन सब के प्रति जिस ओपननेस से हम उन विचारों का स्वागत करें, उस विषय पर आपने हम सबको मार्गदर्शन भी दिया। पुनः डॉक्टर सतीश खारलीकर जी का धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे सेकंड गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर प्रवीण श्रृंगारे जी से कि सर आप भी आएं और इस कॉन्फ्रेंस के प्रति अपने गुड विशेस प्रदान करें। डॉक्टर प्रवीण श्रृंगारे जी। Dignitaries on the dais, delegates and dear friends. I am associated with this Brahma Kumaris since more than 30 years. I started my career in the medical college and I was like routine other teachers and other colleagues. When I came in association with the Brahma Kumaris, then I realized the real, what is real life and what is real profession. Friends, they taught me in which, whatever profession you are, you have to love to your profession. You must have a passion to your profession. Initially, it was something like what we call as a patya takne, that type of, I retired as a government servant after 40 years. So you know what is typically a government servant is. But they
change the attitude. Now what is that? Only one example I will give you, that on Friday evening after the dinner, you should always think about what I have to do on Sunday and Saturday. So you should be passionate about how to enjoy the 2 days. But Sunday at the time of dinner, you should be passionate. You should think, yes, tomorrow I have to do this, I have to do that. You should be passionate about your work on that, and that is a passion. Friend, it's not the one side. Most of the people, they have unilateral passion. No, you must think in that line. I attended many lectures in Mount Abu also. And after attending, well, we never used to miss the Shivani Didhi's lecture. Even we requested her in Mount Abu that you organize a special lecture. We used to give topic to her. And after coming back from one day, I realized that the Bombay faced a cyclone. And at the end of the cyclone, then we saw thousands of the bottles and rat pieces and dust, everything coming out from the sea. Then I looked from that angle, what they taught us there or what they explained there. You see, that cyclone of the sea is a rejuvenation of the sea. So it's a nature also rejuvenates, throws tons of dust material outside the water. And this is, friends, then I realized, yes, when nature itself is rejuvenating, why we should not rejuvenate? And I thank the Mehta for calling me to this conference and giving me this opportunity and shared some of my views. Thank you, Dr. Mehta, and thank you, the organizer. Thank you so much, Dr. Praveen Shingare ji. मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मंच पर शुभकामनाओं के लिए श्री मधुसूदन अग्रवाल जी से कि आप महोदय कृपया पधारें और इस सम्मेलन के प्रति अपनी शुभकामनाएं दें। श्री मधुसूदन अग्रवाल जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे दोस्त जिनको 20 साल से भी ज़्यादा जानता हूं, डॉक्टर अशोक जी मेहता, हेड एंड नेक के ऑन्को सर्जन हैं, इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ब्रह्म कुमारी, संतोषी दीदी, शिवानी बहन, मंच पर उपस्थित सभी आज के स्पीकर्स, इनवाइटेड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत दिन से इच्छा थी, डॉक्टर मेहता जी ने मेरे को कई बार इनवाइट किया कि आप माउंट आबू आइए। मैं भी मेडिटेशन करता हूँ और बिलीव करता हूँ, हम दवाई की कंपनी चलाते हैं अजंता फार्मा, तो शरीर अच्छा करने के लिए दवाइयाँ लगती है और माइंड अच्छा करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। आज भी सवेरे 5 बजे उठ के मेडिटेशन करके आया। तो मैं कई बार शिवानी बहन को टीवी पर सुना, तो मैं डॉक्टर साहब को 2-3 बार बोला कि चलो एक बार उनको पर्सनली मैं ऐसे जाके सुनना चाहता हूँ। तो आज ये मौका आया। मैं थाईलैंड में था 2 दिन पहले, उन्होंने मुझे कहा कि आप आ सकते हैं क्या संडे को। मतलब जरूर आता हूँ मैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी यहाँ आकर कि जहाँ इतने मेडिकल फर्टिलिटी के लोग हैं। दोस्तों, अभी हम जब कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे तो सबसे ज़्यादा जो काम है वो डॉक्टर लोग का काम है, और उन्हें सेक्रीफाइस भी दिया। सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस डॉक्टर लोगों का था। कितने लोगों की जान गई। अजंता फार्मा के हमारी कंपनी के 17 रिप्रेजेंटेटिव्स जो यंग लड़के थे, लड़कियां थी, डेथ हो गई उनके। तो मैं जो भी मेडिकल वर्कर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो इस महामारी में इनका देहांत हो गया, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आप सबसे विनंती करता हूं कि उनके याद में एक जोरदार तालियां बजाए। और जैसे मैंने कहा, मन और तन दोनों अच्छे रहे तब जाकर आदमी का जीवन सुखी होता है। तो दवाइयों से आपका शरीर अच्छा हो जाएगा और मेडिटेशन से आपका मन। तो हम सब आज इस रिजुवेनेटिंग माइंड के इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज सब आनंद लेंगे मन को अच्छा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मधुसूदन अग्रवाल जी का। मंच पर हमारे बहुत सारे अतिथि बैठे हैं। दिल तो है कि हम सभी से सुने, मगर समय को ध्यान में रखते हुए हम उनकी शुभकामनाओं को दिन भर में सुनते रहेंगे और समय पर समय को देखते हुए उनके शुभकामना संदेशों को लेते रहेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथियों का सम्मान करें। मैं सर्वप्रथम
आदरणीय संतोष दीदी जी से अनुरोध करता हूँ डॉक्टर सतीश खादलीकर जी का सम्मान करें, शॉल उठाकर, ईश्वरीय स्मृति चिन्ह देकर और ईश्वरीय प्रसाद भेंट के डॉक्टर सतीश खादलीकर जी का सम्मान आदरणीय संतोष दीदी जी करेंगे। डॉक्टर प्रवीण श्रृंगारे जी का सम्मान करेंगे आदरणीय दीदी जी। मैं अनुरोध करता हूँ श्री मधुसूदन अग्रवाल जी का सम्मान करें आदरणीय दीदी जी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर नीलिमा वैद्य भामरे जी से कि वो भी दीदी जी से स्नेह और सम्मान प्राप्त करें। डॉक्टर नीलिमा जी प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स के। नीलिमा जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आमदार कैप्टन सेल्विन जी से कि वो भी मंच पर पधारें और दीदी जी से सम्मान प्राप्त करें। दीदी जी शॉल प्रस्तुत कर रहे हैं, ईश्वरी स्मृति चिन्ह उस परम शक्ति के चिन्ह के रूप में और ईश्वरीय प्रसाद भेंट दे रहे हैं और सभी को एक तुलसी का पौधा जो स्वास्थ्य का चिन्ह भारत में माना जाता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर योगेश जी से कि वो भी पधारें और दीदी जी से सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर योगेश जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। थैंक यू। अब मैं ग्रीटिंग्स के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी से कि सर आप मंच पर आए हैं और कृपया इस कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में अपने शुभकामना संदेश हम सभी के बीच दें। डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी। ओम शांति। परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, आदि पिता जगत पिता ब्रह्मा बाबा, मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय संतोष दीदी, शिवानी दीदी, हृदय से सम्मानित मंच पर सभी उपस्थित हमारे डॉक्टर, सीनियर वक्ता, क्या कहें, हमारे बॉम्बे के क्रीम अधिकारी, मेडिकल के अधिकारी, सभा में उपस्थित सभी डॉक्टर्स भाई बहनें, माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी के तरफ से हम आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबको देख करके मुझे इतना हर्ष हो रहा है, इतना बिजीएस्ट डॉक्टर सप्ताह में एक ही दिन मिलता है फैमिली के लिए, और वो भी फैमिली के टाइम छोड़ करके और आज हमारे कॉन्फ्रेंस में आए हैं। सचमुच हम आपका सम्मान क्या कर रहे हैं, परमात्मा आपका सम्मान करता है जो आध्यात्मिकता में, मेडिटेशन में आप इतना रुचि रखते हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई थी, डॉक्टर अशोक मेहता, आप समझ सकते हैं उनका एज कितना होगा, नियरली 90 के लगभग होगा। आप इतने उम्र में इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किए हैं, इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं। आपकी व्यवस्था को देख करके हमको लगता है कि नहीं, सर तो कहे कि हम हर साल एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, शिवानी दीदी को रिक्वेस्ट करेंगे, हम तो शिवानी दीदी को रिक्वेस्ट करेंगे कि 4 महीने पर एक कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात कुछ अधिकारी, बड़े सीनियर ऑफिसर्स, बॉम्बे के माने हुए ऑफिसर्स गवर्नमेंट के, उनके साथ थोड़ी मीटिंग हुई, उनका अनुभव सुना कि विदेश से भी पेशेंट आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए। हमारे बॉम्बे के डॉक्टर्स केवल बॉम्बे के पेशेंट के लिए नहीं हैं, केवल महाराष्ट्र के पेशेंट के लिए नहीं है, केवल भारत के पेशेंट के लिए नहीं है, सारे विश्व के पेशेंट को ठीक करते हैं। तो ऐसे फिजिशियन को, डॉक्टर को, क्या डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोगों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? जरूर मेडिटेशन के लिए कुछ भी हो, हमारे बॉम्बे के डॉक्टर्स के लिए मेडिटेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। हम भूल न जाएं, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। माउंट आबू में 8 से 12 सितंबर हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं माइंड बॉडी मेडिसिन पर। आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और हमारा यही संकल्प है कि हम 4 महीने पर एक कॉन्फ्रेंस जरूर करें। यहीं हम अपने वाणी को विराम देते हैं। फिर से आप सबको हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बनारसी जी का उनकी शुभकामनाओं के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी से कि वो भी मंच पर पधारें और इस कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य में अपनी शुभकामना संदेश दें। डॉक्टर प्रताप मिड्ढा वाइस चेयरपर्सन हैं द मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के और डायरेक्टर हैं ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू के। डॉक्टर मिड्ढा। Om Shanti. Well, it's a proud privilege to be here amongst all of you.
And I'm very happy that the dais today is graced by Dr. Ashok Mehta, Santosh Didi, and Shivani Ben, and other dignitaries. We feel medical fraternity has a lot of responsibility, and responsibility to convey this message to the masses. Because when we talk to a doctor, we are not just talking to a doctor, we are talking to his whole universe. And when we talk of soul medicine, what Dr. Satish very rightly said, it is we need to change the way we live our lives today. So this conference should send a message across that if we change our lifestyle, if we change our living ways, then probably the diseases will leave of its own accord. Because that's what has gone wrong today. So it's time to change. It is time, it does require courage to change. It does require conviction to change. And then we need to connect the source. And we need to connect, where do we find the energy to change? That has been rightly said that we need to connect to the source. And that source is Supreme Soul. The Brahma Kumaris believe that it is time to change, not only change but transform totally, so that we bring a new world, a world where we all would enjoy, we all would be healthy. My best wishes to change, my best wishes to transform this whole world. Thank you. Thank you so much, Dr. Mita. मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर सचिन परब जी से कि वो फॉर्मली हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का इस इनॉग्रल सेरेमनी में आने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर सचिन परब। Om Shanti. Good morning. At the outset, I would like to thank Almighty God, Allah, ईश्वर, जिन्हें हम ब्रह्मा कुमारी में प्यार से शिव बाबा कहते हैं। आप वो लोगो देख रहे हैं स्टार वाला, जो हम सब मनुष्य आत्माओं के पिता इज और फादर, और जिनके शरीर में प्रवेश किया वो साकार ब्रह्मा बाबा, जिनके ऊपर से संस्था का नाम है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 3 महीने से हम लगे हुए हैं कंटिन्यूसली। डॉक्टर अशोक मेहता, हिज एज इज 86 प्लस। मैं थक जाता हूँ, लेकिन उनके चेहरे पे मैंने थकावट नहीं देखी है पिछले 3 महीने से। So this is only possible when Almighty's blessing is there. So thanks to Almighty and His medium Brahma Baba, who has infused so much energy in Dr. Ashok Mehta. He called all the Brahma Kumari teachers. There are 100+ centers in Mumbai and nearby. And our Joint Chief of Brahma Kumaris, the most respected Santosh Didi, she also came for the meeting and they cooperated. All the centers of Brahma Kumaris, they have helped us, and my beloved, very senior and loving teacher, Shivani Ben, who is the voice of God, शिव की वाणी, उन्होंने एग्री किया, हमको बहुत खुशी हुई। तो शिवानी दीदी एंड ऑल ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर, डॉक्टर खाड़िलकर हु स्पोक सो वेल, श्रृंगारे सर, हमारे अग्रवाल जी, एंड बनारसी भाई डॉक्टर प्रताप मिधा, एएमसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर भामरे मैडम, एंड केतन मेहता इज नॉट कम, तो ही इज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ IMA। एंड मेरे बाजू में जो बैठे डीन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कलवा मेडिकल कॉलेज, सभा में बहुत लोग बैठे हैं सीनियर्स। हमारे डॉक्टर शिरीष पाटिल है, इज एक्स VC ऑफ DY पाटिल यूनिवर्सिटी। सर आप खड़े रहेंगे, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ बिग इंस्टीट्यूट इन नेरुल, नवी मुंबई। ही हैज़ कम अप विथ हिज 30 पीपल। हमारे डॉक्टर R राजेश है, ही इज चीफ ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ रिलायंस, डॉक्टर R राजेश। ही हैज़ कम, एयरपोर्ट से डायरेक्ट आए हैं। और बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, बट ऑल द डॉक्टर्स हु हैव कम हियर। ब्रह्मा कुमारी सेंटर से रिलेटेड षण्मुखानंद हॉल के शंकर एंड हिज टीम, इन्होंने हमको बहुत सहयोग दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट द स्पॉन्सर
वाटुमल सैनिटोरियम ट्रस्ट, उनके भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना। मैं मेहरोत्रा जी को जानता हूँ, इज सिटिंग क्वाइट सीनियर पर्सन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। संडे के दिन पे आप आए हुए हैं यहाँ पे समय निकाल के। आई विश ऑल ऑफ यू अ ग्रेट डे हियर। हमारे बीच में अभी अभी डॉक्टर येवलेकर सर आए हैं, हम उनको भी तालियों से स्वागत करेंगे। ही इज ex-dean एंड सीनियर पर्सन ऑफ मुंबई। तो आप सब डॉक्टर्स जो यहाँ पर आए हुए, आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। अगर किसी का नाम छूट गया है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे सामने घड़ी टिक हो रहा है, 1 मिनट और 30 सेकेंड्स बाकी है। सो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल। हाथ खड़ा करेंगे, कंफर्टेबल है? नहीं होगे तो भी करना पड़ेगा। चलो आप हंसे हैं, मेरे को अच्छा लगा। प्लीज टॉक टू अस इफ यू हैव एनी इनकन्वीनियंसेस, वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, है ना। आपके कोई भी असुविधा हो तो हमें क्षमा कीजिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। ओम शांति एंड गुड डे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परब जी का। एंड वी कम टू अ फॉर्मल close of this inaugural ceremony, and we have had a very beautiful beginning. और आज दिन भर के सेशंस में हम लोग कुछ ऐसे ही अच्छे विचार भी सुनेंगे। मैं जानता हूँ आप सभी आतुर हैं, आज का लाइनअप भी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा है। दीदी जी हमारे बीच हैं, तो इससे पहले कि हम दीदी जी से विदाई लें, मेडिकल विंग की तरफ से मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी से और डॉक्टर सचिन परब जी से कि आदरणीय संतोष दीदी जी का और डॉक्टर अशोक मेहता जी का भी सम्मान हो। और जी, हमारे बीच मुंबई शहर के मेडिकल फ्रेटर्निटी के बहुत ही जाने मानी नामचीन हस्तियाँ ऑडियंस में बैठी हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। दीदी जी का सम्मान हो रहा है, अपनों का अपनों के द्वारा ही ये सम्मान है। ये छोटा सा प्रयास कि आज समय निकालकर सभी एक स्थान पर एकत्रित हो सकें, आदरणीय शिवानी दीदी जी को भी सम्मानित करते हुए शॉल ओढ़ाकर डॉक्टर अशोक मेहता जी जो प्रेसिडेंट हैं मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के, उनका भी सम्मान डॉक्टर बनारसी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पीस ऑफ माइंड टेलीविजन चैनल, ब्रह्मा कुमारीज के यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक फीड्स पर लाइव जा रहा है और साथ साथ मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पर भी इसका सीधा प्रसारण है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर सचिन से आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो जो सभा में उपस्थित हमारे कुछ गणमान्य हैं उनका भी स्वागत और उन्हें भी रिकग्नाइज करें। डॉक्टर सचिन परब। सॉरी, आई एम वेरी टाइम कॉन्शियस मोर देन डॉक्टर अशोक मेहता। हमारे बीच में डॉक्टर दामिनी आए हैं। शी इज़ अ डॉक्टर जिन्होंने समा को बांधा 2 गीत गाए। डॉक्टर दामिनी प्लीज। शी स्पेशली फ्लोन फ्रॉम अहमदाबाद, तो इनको भी थैंक्स देंगे। हमारी ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, तो ज़रा संभाल के रखना, कैमरा आपके पास भी आएगा, तो आप वर्ल्ड में जाने वाले हैं। उसको अगर बताएंगे तो वो घुमाएगा आपकी तरफ। तो ये मुकेश भाई और इनकी टीम पूरी आई हुई है माउंट आबू से, और कल से इनका सेटिंग चल रहा है। ये जो फोटो निकाल रहे हैं उल्लासनगर से आए हैं जगदीश भाई, हम सब इनके लिए तालियां बजाएंगे। बहुत लोगों ने बहुत मेहनत किया हुआ है। कनाडा से हमारे इधर एक पार्टिसिपेंट है, इमेजिन, कनाडा से। शी इज अ साइंटिस्ट, डॉक्टर अनु जी आप खड़े रहेंगे। शी हैज कम फ्रॉम कनाडा टू अटेंड आवर सेशन। हमारे स्पीकर से जिनको आप मिलने ही वाले हैं, तो मैं खड़ा नहीं करना चाहूँगा, फिर भी डॉक्टर स्वामी भाई मुझे दिखाई दे रहे हैं। ही हैज कम, ही इज़ वन ऑफ द स्पीकर फॉर टुडे, वेरी फोर्सफुल स्पीकर। और पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज मतनानी, ही इज सिटिंग हियर।
एंड टीम फ्रॉम जलगांव, जलगांव वाले पहुंचे क्या? जलगांव, अच्छा अकोला से, अच्छा जलगांव वाले वहां बैठे हैं, अकोला से भी कोई आए हैं, देयर आर टीम. सो पीपल हैव कम फ्रॉम आउट ऑफ मुंबई आल्सो टू अटेंड, लिसन टू शिवानी बहन. सो थैंक यू वेरी मच. स्टूडेंट बैठे हैं, नर्सेस, नर्सेस कितने जरा हाथ खड़ा करेंगे? नर्सेस, हाँ नर्सेस ऊपर है, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. वी आर स्टॉपिंग हियर. थैंक यू एवरी. हाँ, डॉक्टर येवलेकर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आप 1 मिनट स्टेज पर आएंगे. He was ex-dean and handled. He was my teacher. इन्होंने मेरा एक्सटर्नल एग्जाम लिया था तो मैं तो कभी भूल नहीं सकता. आते ही सब डरे हुए थे. अब मेरे को हेमीप्लेजिया का केस था, अभी वो स्टोरी अलग है. सो वी आर वेलकमिंग डॉक्टर येवले सर. 2 मिनट्स हम उनकी ग्रीटिंग्स लेंगे. डॉक्टर ओयू. Thank you, Sachin. At exams, he has done wonderfully well. And so he has reached here at the right place. I'm extremely happy to be amongst you all. Some of my old colleagues, Dr. Ashok Mehta, Kadilkar, Dr. Singari, and the huge crowd who have come on a Sunday morning. I'm extremely pleased to be here, and I look forward to listen the words of wisdom, because this is an international event. Right from Mount Abu, Madam has come. So I'm happy to be a part of today's celebration. Thank you very much. Thank you so much to all the dignitaries. I would like to acknowledge and extend my gratitude and thanks to Shri Chetan Mehrotra ji and Meera Didi ji, the trustees of Watermill Sanatorium Trust, who are the chief sponsors of the conference. Thank you so much for your assistance and support. And I would also like to thank and acknowledge the presence of so many from our medical fraternity, doctors, deans, medical directors, HODs, senior doctors, politicians, so many to name. Thank you all of you for coming and making this a special day for us. And during the day, we would also have opportunities to formally and informally meet each other. So let us look forward to the day. Thank you once again. और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ. एक बार जोरदार तालियां हमारे मंच के लिए जो इस स्वागत सत्र में हमारे साथ जुड़े. आदरणीय दीदी जी का, शिवानी दीदी जी का, डॉक्टर अशोक मेहता जी का, सतीश खादलीकर जी का, डॉक्टर नीलिमा जी का, डॉक्टर बनारसी जी का, डॉक्टर प्रवीण सिंगारे जी का, मधुसूदन जी का, सभी का तहे दिल से धन्यवाद है. थैंक यू सो मच. ये सभी अतिथिगण आपके साथ सभा में विराजमान होंगे. We will take a few moments to set the stage for you for the formal beginning of the first session. And in the meanwhile, I would like to invite Dr. Damini ji to present a beautiful song for you while we are making the settings. So please do enjoy this small piece of music. Over to Dr. Damini ji. Music, please.